Good morning students. Myself Ritu Chauhan. Welcome to the SRPS online classes. Today we are going to study a new chapter, chapter number 10. Chapter number 10. Percentage. Okay. So many times you have heard this word percentage. So many times your guardians, your relatives, your friends maybe have asked you like how many marks have you scored, how many percentage have you scored. So percentage word you have heard so many times, okay, and we denoted this percentage word like this. By this symbol we denote this percentage, right? So many times we write 20%, 70%, 30%, right? So this symbol denotes, this symbol represents the word percentage. Okay? So first of all, this percentage means 1/100. It means कहीं पर भी आपको ये वर्ड, ये सिंपल लिखा हुआ आता है परसेंटेज, इसका मीनिंग है 1/100. ओके, सो फर्स्ट percentage we denote this word by this symbol, right? And meaning of this percentage is 1/100. Okay, 3 points. First is percentage. Percentage को हम डिनोट करते हैं by this symbol and percentage means 1/100. Okay, so let's start with this topic, chapter percentage. Percentage 1/100. Question exercise 10A. परसेंटेज क्लियर है? बहुत ज्यादा डीपली हम इसकी नॉलेज में नहीं जाएंगे, सिर्फ परसेंटेज क्या होता है थ्योरी, हम इसकी बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे. और परसेंटेज सिंपली मैंने बताया, परसेंटेज को हम इससे डिनोट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? 1/100. सो इफ यू वांट टू स्टडी अ थ्योरी, अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है ये परसेंटेज की, यू कैन स्टडी इन योर बुक चैप्टर नंबर 10 एंड पेज नंबर इज 138 R.S. Agarwal. Okay, so theory you can read out there. Let's start with the exercise 10A. In this exercise, question number 1 is saying convert each of the following fractions into a percentage. Question is asking for the, you have to convert the fraction into the परसेंटेज. क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज. ओके, एज वी ऑल नो एंड आई हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर फ्रैक्शन. व्हाट इज द फ्रैक्शन? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, राइट? सो जब भी आपको ये पॉइंट जो मैं आप बोलने वाली हूँ, कीप दिस इन योर माइंड वेरी क्लियरली, क्योंकि स्टूडेंट्स 12th में आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, फिर भी सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे गेट कंफ्यूज्ड इन दिस कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. सो कीप दिस इन योर माइंड. आई वांट यू फोकस ऑन दिस पॉइंट. व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और व्हाटएवर, जब भी हम किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, टू कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100. I repeat, whenever you need to convert a fraction into
मल्टीप्लाई। फोकस ऑन दिस पॉइंट। अगर आपको ये क्लियर है दिमाग में तो आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि हमें अगर किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हमें क्या करना है, टू कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, ए ऑफ फर्स्ट, 47 upon 100, 47 upon 100, and question we all know very well, the question is asking for the conversion of fraction into a percentage। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। एंड अभी मैंने आप लोग को बताया टू कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हम मल्टीप्लाई करते हैं, and 47 upon 100 you have to convert it into a percentage, so we will multiply this by 100, so by 100। now 47 upon 100 multiply by 100, नीचे कुछ भी नहीं है, we can write here 1, this 100 cancel by this 100, so 47 upon 1, so 47%, this is your final answer। okay, is there any doubt? I hope so, no। okay, now question number 8 I'm taking of this question, question number 8 of first, 1 and 3 upon 5, 1 and 3 upon 5। in the fraction chapter we have studied this is the mixed fraction। okay, so to convert the mixed fraction, first we need to convert it into proper fraction, right? So we will multiply this 5 by 1, so 5 ones are 5, 1 multiply by 5 plus 3 upon 5, 5 ones are 5 plus 3 upon 5, 5 plus 3 8 upon 5, so first हमने से कन्वर्ट किया, ये अब सिंपल फ्रैक्शन बन गया 8/5 जो कि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन था। नाउ एज वी ऑल नो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 8/5 बाय 100, so 5 is 5, 5 2 is 10, 0, so 8 multiplied by 20, तो कितना हो जाएगा, 8 2 is 16, 0, right? 160, 5 is 5, 5 plus 3 8, 8/5 multiplied by 100, 5 2 is 10, 0, 8 2 is 16, 160 percentage, this is your final answer। okay, so accept these two questions you have to note down in your fair notebook। okay, as I we shared these videos with you, okay, day by day, and you have to note down the work। okay, so given work and then you have to complete your assignment, right? so these two questions you have to complete in your fair notebook, then accept all the questions you have to complete is your homework given assignment, clear? so exercise step A, question number 1 is complete। after question number 1, question number 2, question number 2 is asking for the convert each of the following, convert each of the following fractions, percentage into convert each of the following into a fraction, convert each of the following into a fraction, it means in this question, question number 2, fraction is given। I want your focus on this point also। first point मैंने आप लोगों को बताया to convert into percentage multiply by 100, right? second point, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100, राइट?
फ्रैक्शन, राइट? सो 32%, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ओके? इन दिस क्वेश्चन एज वी नो दिस इज 32 एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ परसेंटेज. सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सेपरेट दिस 32 बाय दिस साइन, बाय दिस सिंबल. हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले हम इस साइन को यहाँ से हटाएं, क्योंकि उसने आपको बोला है परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है. इट मींस कि परसेंटेज का साइन तो यहाँ पहले से हटना चाहिए. परसेंटेज में तो हमें कन्वर्ट करना नहीं है, परसेंटेज ने ऑलरेडी गिवन है हमें, तो परसेंटेज को हमें हटाना है यहाँ से. टू रिड्यूस दिस परसेंटेज साइन, और इस परसेंटेज साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 32 मल्टीप्लाई बाय, मैंने आप लोगों को बताया परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100. इन दिस हियर आल्सो परसेंटेज इज 1/100. सो अगर मैं परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाना है, और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा परसेंटेज का साइन क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो आंसर वो हमसे डिमांड कर रहा है उसमें कहीं भी परसेंटेज आपको शो नहीं करना है, राइट? सो फर्स्ट हम इसे हटाएंगे. परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? 1/100, राइट? नाउ 32 multiply by 32 and 1 multiply by 100. Now as you can see 32 can be divided by 2 and 100 also. So 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 16, और इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 50. So 16/50. फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें. 2 8 is 16 and 2 25 times. So 8/25. Now as you can see 8 is a even number and 25 is a odd number, और 8 2 से डिवाइड हो सकता है but 25 only 5 से डिवाइड होगा. And in the fraction chapter I told you so many times कि जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं we must observe one thing कि दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए. ये हमें ध्यान रखने वाली बात है. And here as you can see 8 2 से डिवाइड हो सकता है but 25 हो सकता है. So this is your final answer. So 32% इसमें कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस क्वेश्चन. परसेंट हटाना है हमें, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फर्स्ट वी नीड टू सेपरेट दिस नंबर बाय दिस साइन और सिंबल. सो अगेन 22.75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, राइट? बिकॉज इस साइन का क्या मीनिंग होता है? 1/100. नाउ अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाना चाहती हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 के साथ पॉइंट कितना डिजिट छोड़ के पॉइंट था? 2 डिजिट छोड़ के, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा? 0 and 0. क्लियर? सो 2275 अपॉन 10000. नाउ वी कैन कट देम. 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 is 25, 5 2 is 10, 0 0 0. Again 5 3 is 45, 5 1 is 5, 5 4 is 20, 0 0. 91 and 400. अब अगर ये आपसे कट हो रहा है आगे तो आप लोग कर सकते हो, नहीं हो रहा तो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 10A, राइट? अब अगर सपोज ये हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, उसने हमसे फ्रैक्शन में आंसर पूछा था तो हमने इसे यहीं पर छोड़ दिया. अगर क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन आपसे आंसर डेसिमल की फॉर्म में डिमांड कर रहा होता तो हम क्या करते हैं? इसको आगे और सॉल्व कर लेते. इट मींस हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 8 को 25 से, तो आंसर डेसिमल में आता. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन आल्सो. सो क्वेश्चन नंबर 5th and 6th, these are the questions like this, question is asking for the decimal form. Question is asking for the answer in the decimal form. Okay, so in that questions you have to solve like this only, but
इसको यहीं पर आप लोगों ने छोड़ना है, आगे भी सॉल्व करना है क्योंकि वो डेसिमल की फॉर्म में आपसे आंसर डिमांड कर रहा है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा परसेंटेज क्या होता है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। एक्सरसाइज 10A इज कंप्लीट नाउ, चैप्टर नंबर परसेंटेज। और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि प्लीज अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एज हाफ ईयरली में भी होगी ही अब, तो डेट अभी फिक्स नहीं है, बट हाफ ईयरली पोर्शन इज ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट हैज कंप्लीटेड। सो दिस इज द लास्ट वन चैप्टर परसेंटेज। ओके, सो फॉर दिस चैप्टर percentage, after this chapter half yearly portion in this subject, half yearly portion is also complete. So keep studying, stay inside, stay safe. Thank you.